Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Can you listen me? Can you see my screen and listen to me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So students are coming one by one in the class. We shall wait only 1 more minute for them, then we shall start our lesson. You all have the notebooks in your hands and the pen to write these words. Today we will learn about the tenses and then we will do the present indefinite tense. Okay, we start. So what are the tenses? What are the tenses and how they adopted the names present, past and the future? We all do the tenses, but many students don't recognize them. They don't tell us they know about the tenses. They can translate a sentence, but they cannot tell that whether the sentence is a present, past, or future, whether it is an indefinite, whether it is a continuous, whether it is a present perfect or perfect continuous. Mostly students have confusion about their recognition, about their awareness. They can translate, but they cannot uh, recognize them. So for this purpose, I can tell you a short story. If you don't know the name of the tenses, you can make a story that, for example, tenses, an old man have the 3 sons, present, past, future, and he made a will that after his death, if his 3 sons, present, past, future, they have conceive children, the first child, then they will, each of his son will give the same name of his first child and same name to the second child and same name to the third child and same name to the fourth child. So you can say that all the grand children of the tens, old man tens, have the same name. दूसरी सूरत में ये भी है कि टेंसेस की आगे 3 टाइप्स हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड दे आल्सो हैव द फर्दर subdivision. If we divide the present tense, it has further 4 types. First is the present indefinite tense. Second is the present continuous tense. Then present perfect tense. Then present perfect continuous tense. In the same way, past perfect also has the furthermore 4 sub branches. These are the past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. And in the same way, future tense also has the 4 furthermore sub branches. These are the indefinite, future indefinite tense, future continuous tense, and future perfect tense, and future perfect continuous tense. So these 12 sub branches are originated from the 3 tenses: present, past, future. So let's start. For example, how the first is the indefinite tense. Today we will do it how we make indefinite tenses. In order to make the indefinite sentences, we need a sentence. You know that a sentence have the 3 parts: subject, verb, and object. A sentence has 3 parts: subject, verb, and object. And this is also the formula of the present indefinite tense. When we translate in all these sentences, we will change the verb
mostly according to the subject. There will be no change in the fix. We can say that subject is fixed, object is also fixed. अब सब्जेक्ट बदलता है, पर्सन जो है वो चेंज होगा, उसके हिसाब से हम वर्ब लगाएंगे. लेकिन अगर हम पहले बात वर्ब की करते हैं तो जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हमने उसमें वर्ब को चेंज करना है. वर्ब की फॉर्म्स बदलती हैं और हमारे टेंस उसके साथ साथ बदलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्टैंडर्ड टेंस है. स्टैंडर्ड टेंस जो हमारी एग्जाम्पल है प्रेजेंट डेफिनेट के लिए, वो हम लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. आई ईट फूड. आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ. अब ये इसमें फर्स्ट फॉर्म आई है. अब तीनों टेंसेस में हम किस तरह यूज करेंगे फॉर्म्स. एक बात आपने रिमेंबर रखनी है कि इन द फर्स्ट फॉर्म present tense always have the first form of the verb, past tense always have the second form of the verb, and future tense also have the first form of the verb with the subject will. So in indefinite sentences you will remember that only second form is used in the past tense, but all the present and the future tenses, they have the first form of the verb. Future have the first form after the will or shall. For example, past indefinite में I eat food will be as I ate food. We replace the ate to eat. सेकेंड फॉर्म आ गई है ईट की, आई एट फूड. इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट में आ जाएगा आई शैल ईट फूड. शैल लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी उसी तरह से. बस इस तरह से इनको आपने समझना है. अब हम करते हैं स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस. Okay. Can you see this new page, students? Yes. Noman Tokir, you have the question that you kaun si ma'am hai? I am Miss Uzma and Miss Musarat is not feeling well. She is ill nowadays. So in her presence, I shall teach you English. So can you see my screen? Reply me in the chat if you have your mics muted. Then reply me in the chat. Can you see this new page? Present definite tense. Yes, ma'am. Okay. When there is talk about the indefinite tenses. Indefinite mean when there is no concept of the time. They are the habitual actions and they are the routine actions. Present tells us about our present time. आपको पता तीन किस्म की एजेस हैं टेंसेस में. तीन किस्म के ज़माने आते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आता है. ठीक है. Students, don't disturb me through the chatting and keep focus on your study, please. Present definite tense, you know that when there is talk about the present, it tells about our current time, about our present time. Three types of times ages होती हैं, present, past और future. पहले हम present को करेंगे. और indefinite आपको मैंने बताया कि it is beyond the concept of the time. There is no concept of the time. And indefinite tenses tells us about the actions which related to our habits and which related to our routine. Okay, so present definite tense is mostly used to tell about to show routine work. For example, he goes to office every day. There is talk about the every day. वो रोजाना अपने ऑफिस जाता है, अपने दफ्तर जाता है, ये उसकी रूटीन है. So it tells us about the routine work. It is used to show facts. अब facts के लिए भी ये यूज होता है. For example, water boils at 100 cc. Earth revolves around the sun. Earth revolves around the sun. I offer 5 times prayer. So all these sentences tells about the facts which we cannot deny. जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट डेफिनेट ही यूज करते हैं. इट आल्सो यूज टू शो द हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, he goes to cinema to watch movie on every Sunday. It is our habit. It is his habit. He takes tea in the evening. वो शाम को चाय पीता है.
वो हर संडे सिनेमा जाता है मूवी देखने के लिए. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स टेल अस अबाउट देयर रूटीन एंड द हैबिट्स. ओके, अब उर्दू में अगर हम इसकी पहचान की बात करें, मैं थोड़ा आपको उर्दू में भी बता दूं कि उर्दू के सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, ताहा हूँ और ते हैं वगैरह आता है. ये आपको पहचान बताई जाती है ना कि एट एंड ऑफ द उर्दू सेंटेंस देयर इज ऑलवेज ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं वगैरह. ठीक है, ये इसकी निशानी है. बट इन द इंग्लिश यू विल know that these are the habitual actions, these are the routine wise actions, and these are also tells us about the facts. For example, I offered 5 times prayer, earth revolves around the sun, water boils at 100 degrees centigrade. So these are the facts. तो इसमें हैबिट्स और फैक्ट्स जो होती हैं वो हैं और हमारी रूटीन आती है. ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला देखें, हाउ टू कन्वर्ट the sentences into the indefinite. So here is the formula. First subject, first there is the subject, then there is verbs first form, and then there is object. So what is the subject? You know that subject is the person who does work. Subject is the person who does work. काम करने वाले को हम subject कहते हैं. So verb is the action of work which the subject does. सब्जेक्ट जो काम करता है उसको वर्ब कहते हैं, एक्शन भी कहते हैं, वो हमारा वर्ब है और हमने प्रेजेंट डेफिनेट पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. एंड ऑब्जेक्ट इज ऑन विच सब्जेक्ट अप्लाइज इट्स वर्क. सब्जेक्ट जिसके ऊपर अपना काम करता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे हमने चेंज करनी है सब्जेक्ट के लिहाज से. अब ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स रहेगा, देयर इज नो चेंज इन द ऑब्जेक्ट, बट देयर विल बी चेंज इन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. We will change our verb according to the subject, but you should remember one thing, that we only use the first form of the verb. Okay, so you can also this is the all the formulas I write here for you. In the plural forms, subject plus verb, first form plus object. We will discuss this later. Let's see the next page. Okay, now the question arises, how to make the positive sentences. You know that in all of the sentences, whether it is the indefinite, whether it is the continuous, whether it is the perfect, or whether they are the perfect continuous, we have the three kinds, three forms. Convert them into positive, then convert them into negative, and then also convert them into interrogative. So first of all, we have to make positive sentences. Positive are also called the affirmative sentences. Positive and affirmative sentences are the same. So in order to convert positive sentences, in order to make positive sentences, our formula is subject, then first form of the verb, and then s or es. If there is need according to the subject, then we will put the s or es after the first form of the word, then there is object. हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. अब फर्स्ट फॉर्म के साथ जो हमारा प्रेजेंट डेफिनेट में, इसमें आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है. ये टेंस वो है जो आप बचपन से करते आ रहे हैं. तो एस और एस लगेगा. एस और एस इट विल बी according to our subject. If our subject is I, we, you, they, and plural noun, plural subject, name of more than one person. If there is name of more than one person, and if there is I, we, you, they, then we will put the first form of the verb only, not addition of the s or es, and then object. Our sequence will be as there is subject I, we, you, they, and plural subjects more than name of the more than one person. Then we will write the first form of the verb only, then object. For example, I play cricket. There is no addition of the s or es with these subjects. अब आप देखें कि ये हमारे सारे सब्जेक्ट जो है ना, ये
फर्स्ट इसमें हमारे फर्स्ट पर्सन है आई हुई, सेकंड हमारा यू जो है सेकंड पर्सन में आ जाता है, दे जो है वो हमारा थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो आपने ये बस याद रखना कि आई हुई यू दे और जो हमारे प्लूरल नेम्स हैं होंगे उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, एस और एस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, आई सेड प्ले नॉट प्लेज, वी प्ले क्रिकेट, you play football, you play cricket, they play football, they play cricket, Ali and Sarah play tennis. So I used only first form of the verb, no addition of the s or es. So remember that I, we, you, they and name of more than one person, they require only first form of the verb, after them then object. If the subject is he, she, it and any singular noun, he, she, it and singular noun, remember these are only for the third person. These he, she, it and singular noun, they resemble, they denote only the third person. So remember that if our subject is he, she, it और singular noun किसी एक शख्स का नाम होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. सो देयर विल बी addition of s or es after the first form of the verb. If our subjects are he, she, it or singular noun, then we will put first form of the verb plus addition of s or es, then object. अब s और es लगेगा कहाँ पे? अब हमारा ये क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसमें भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं. s और es लगाने की जो सही वर्ब है उस पर वो नहीं लगा पाते. तो उसका अब एक बार सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका सिंपली भी देखें आप, कि ये तो मैंने एरो के साथ आपको ऊपर बताया, अब वही अरेंजमेंट आनी है. ये देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आ गया है, उसके बाद ये हमारा वर्ब आ गया फर्स्ट फॉर्म, फिर एस और एस लगेगा. उस सूरत में लगेगा हम अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा, तो फिर एस और एस नहीं लगेगा, बाकी सबके साथ नहीं लगेगा. ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसके बाद आएगा. यही अरेंजमेंट है जो हमने ऊपर एरोस के साथ दिखाई है, वही अरेंजमेंट नीचे है. अब क्वेश्चन ये है कि वेयर टू यूज एस एंड वेयर टू यूज ई एस. So where we use s and where we use es. Remember that s or es will be added with the first form of the verb. Okay. If our verb ends in double s, sh, x or o, then we shall add es to the verb. अब ये देखें कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अगर वो खत्म होते हैं इन वर्ड्स पे, डबल एस पे, एस एच पे, एक्स पे, ओ पे, तो हम उसमें ई एस ऐड करेंगे. जैसे किस है तो किसीज, फिनिश फिनिशीज, वॉच वॉचेस, मिक्स है तो मिक्सीज, गो विल बी गोज. इन ऑल दीज वर्ड्स. अब देखिए यहाँ पे गो जो है वो ओ पे एंड होता है ना, इसका ओ आ गया तो हम ई एस लगाएंगे. मिक्स के एंड पे एक्स आ गया है, हमने ई एस लगाना है. वॉचेस में एच हमारा सी एच पे एंड होता है तो ई एस लगाएंगे. फिनिशेस में हमारा एंड एस एच पे होता है तो हम ई एस लगाएंगे. किसिस में हमारा एंड डबल एस पे, किस में डबल एस पे होता है तो हमने ई एस लगा के उसको किसिस बना दिया. सो स्टूडेंट्स, ऑल दीज वर्ड्स आई मेंशन्ड हियर, आई हियर change it for you for your understanding. I hope you understand it. If the verb ends in consonant, you know that consonant in our ABC from A to Z we have 26 alphabets. Okay, and there are only 6 vowels and all other words are the consonants. वोवल्स के अलावा हमारे जितने हैं वो कॉन्सोनेंट हैं. तो अगर हमारा जो वर्ब है वो कॉन्सोनेंट पे एंड होता है, यानी उसके एंड पे वोवल ना हो, कॉन्सोनेंट हो या फिर वाई हो, तो फिर हमने उसको किस तरह से चेंज करना है. कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद वाई हो तो फिर हमने उस वाई को खत्म कर देना है, वाई रिमूव करके आई ई एस लगा देना है. ठीक है, उसको प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस लगा देना है. सॉरी, प्लूरल बनाने के लिए नहीं, उसमें ई एस
या एस ऐड करने के लिए, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें सिंपली एस लगाना पड़ता है। अब ट्राई है, ट्राई का वाई हमने रिमूव करके उसको आई ई एस लगा दिया है, ठीक है, आई एंड ई एस। ये देखें, मैंने आपको यहाँ पे बताया वाई को रिमूव करके आई और ई एस लगा देना है। स्टूडेंट्स, you are coming very late in the class. Remember that you should come immediately at the 10 o'clock. You have missed the many important parts. Try, remove the y, then ies twice. Carry, we will remove y and made it carries, carries, carries. Study, y remove studies. Cry, cries. Fly, flies, and copy, copies. Here we remove y and write ies in place of the y. Some words only need, some word only needs s in addition, you know, and it is very easy for the students. Students mostly confused when there is a consonant plus y and when there is the different sounds, then they confuse. Now there are some examples of the affirmative positive sentences. अब देखें वो आहिस्ता चलता है, ये हमने उसी हिसाब से बनाया है जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमने ऊपर रूल्स डिस्कस किए हैं, वो आहिस्ता चलता है। वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, ही है। जिस तरह के मैंने ऊपर आपको बताया कि जब ही होगा तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। ये देखिए, जब ही होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का एडिशन होगा, तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे। वो आहिस्ता चलता है, ही वॉक्स स्लोली, यहाँ पे हमने वॉक के साथ एस लगा दिया। अब वॉक एक ऐसा वर्ब है विच नीड ओनली एस इन एडिशन, इसके साथ एस लगेगा सिंपली, ई एस नहीं लगेगा। ई एस वाले मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं जिनके साथ ई एस लगेगा। वो और एग्जांपल्स हैं, वो कॉन्सोनेंट और वाई वाले हैं, या फिर वो जो है उनकी साउंड्स, उनके एंड पे वर्ड्स चेंज आते हैं। तो ही वॉक्स स्लोली हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब हमारी अरेंजमेंट देखें वही है, हमने अरेंजमेंट आगे पीछे नहीं करनी। यहाँ पे ही हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉक हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस हमारा लगा है सब्जेक्ट की वजह से, और स्लोली जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये हमारी अरेंजमेंट यही रहेगी, इसको आगे पीछे नहीं करना। और इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता इंडेफिनिट टेंसेस में। उर्दू में आप देखें कि इनके सबके एंड पे ता है, ती है। हम जितने भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, बच्चे आंख में चोली खेलते हैं, अब यहाँ भी ते हैं आया, खेलते हैं, ये जो है अब प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो खेलते हैं से हमें पता चल जाता है कि ये प्लूरल है। बच्चे चिल्ड्रन, खेलते प्ले। अब प्लूरल के लिए मैंने आपको ऊपर बताया था कि व्हेन देयर इज मोर देन नेम ऑफ द मोर देन वन पर्सन, या प्लूरल नाउन होगा, दे होगा, एक से ज्यादा शख्स का नाम होगा, तो फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, एस और एस नहीं लगेगा। चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द प्लूरल, सो देयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले। देन देयर इज हाइड, हाइड रिप्रेजेंट आवर वर्ब। आंख में चली खेलते हैं, हाइड एंड सीक, सॉरी हाइड एंड सीक इज आवर ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक, बच्चे आंख में चोली खेलते हैं। उसके बाद अब मूसलाधार बारिश होती है। अब मूसलाधार में बहुत तेज बारिश होती है। इट रेन्स हैवीली, इट जो है इट भी उसी रूल में आ जाता है, सिंगुलर है तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा। हैवीली भी कह सकते हैं, और इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स भी होता है। हैवीली इज मोर इजी। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। सूरज, द सन, सेट इज आवर verb, so we place sets s in addition in the west। अब देखें कि सन जो है वो सिंगुलर नाउन भी है, और उसी में आ जाता है जो हमने एंड पे रूल फॉलो किया है, जिसमें ही शी इट आता है। तो उसमें हमने कहा था कि जो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस लगेगा। सन जो है वो सिंगुलर नाउन भी है और थर्ड पर्सन में भी आ जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी थर्ड पर्सन है ना, सिवाय प्लूरल के, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, वो सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। तो सन जो है वो एक तो थर्ड पर्सन का नाउन है, दूसरा ये सिंगुलर नाउन है, तो हम सेट नहीं सेट्स लगाएंगे। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। उसके बाद वो रोजाना चाय पीती है। अब ये भी देखिए उसकी हैबिट है,
ये पीती है, ती है पे खत्म हुआ है। शी टेक्स टी डेली, शी के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगेगा। तुम हमेशा क्लास में अव्वल आते हो, तुम यू, अब तुम के लिए यू आया, यू ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। अब स्टैंड्स नहीं है, स्टैंड है, क्योंकि यू उस रूल में आ जाता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस नहीं लगता। ऊपर देखें, अब ये देखें, यू उस रूल में आता है जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, एस और एस नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि एस ओनली फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन देयर इज ऑब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एस और एस नहीं लगाना। ओके, उसके बाद है पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करती है। पुलिस अरेस्ट, पुलिस है तो हमारा एक प्लूरल, लेकिन एक कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन है उसके लिए फिर हम वही रूल यूज करते हैं जो हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं। तो पुलिस जो है वो सिंगुलर ही है वो कलेक्टिव नाउन, लेकिन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नाउन, द नाउन विच रिप्रेजेंट हिज होल क्लास, इट इज अ कलेक्टिव नाउन। पुलिस जो है उसमें जितने भी मेंबर्स हों, जितने भी सोल्जर्स हों, हम उसको पुलिस ही कहते हैं। तो इसके लिए भी हम वही रूल करेंगे कि वर्ब की, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन ही रिप्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि इसके एंड पे देखे ना, करती है, पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करती है, तो हमें इसके लिए एस लगाना पड़ेगा। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अरेस्ट, अरेस्ट नहीं आएगा, अरेस्ट द रोबर्स, रोबर्स हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद देखें वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे के साथ प्ले आएगा, प्लेज नहीं आएगा, दे क्योंकि उसी रूल को फॉलो कर रहा है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आई, हुई, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हुई प्लेड ओनली द फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द एस और ई एस। उसके बाद देखें हम हर साल मरी जाते हैं, वी गो टू मरी एवरी ईयर। अब यहाँ पे वुई के साथ भी गो आएगा, गोस नहीं आएगा, क्योंकि वुई भी प्लूरल है और जाते हैं से हमें पता चलता है कि हम भी प्लूरल के लिए है और जाते हैं, ते है एंड पे आया है, ते है, ये प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। वी गो टू मरी एवरी ईयर। अब देखिए एवरी ईयर, हर साल वो जाते हैं, ये भी उनकी रूटीन है ना। तो हम जितने भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना सेंटेंसेस, अब वो देखें वो सारे रूटीन्स हैं, हैबिट्स हैं, फैक्ट्स हैं। डोलची ढोल बजाता है, डोलची ढोल, ड्रमर बीट्स द ड्रम। अब बीट, बीट नहीं बीट्स आएगा, डोलची थर्ड पर्सन है, एक पर्सन का नाम है, एक पर्सन का नेम होगा, थर्ड पर्सन होगा, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाते हैं। तो ड्रमर बीट्स द ड्रम। आई होप यू अंडरस्टैंड द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इफ yes, then kindly reply me in the chat that you understand it. Then we will start the negative sentences. Yes, students, reply me. Did you understand affirmative sentences? Okay, good. Now our question is how to make the negative sentences. You know that in all these sentences we have the positive, then negative, then interrogative sentences. So how we will make the negative sentences? Our rule is this: if our subject is he, she, it and singular subject. अब यहाँ भी वही वाले subjects आ जाते हैं, जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर था और जो वो सारा ही, शी, इट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक शख्स का नाम, एक लड़के या लड़की का नाम या किसी एक चीज का नाम होगा, तो फिर वो डस नॉट आएगा और वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। Remember students, if there is does or do in the negative or interrogative sentences, then there is no any addition of the s or es after the verb. Okay, the addition of s or es after the verb will be only in the affirmative sentences. Negative and interrogative are free from this addition. Okay, so if our subject is he, she, it and singular subject, then we will use does not, then first form the verb. Our arrangement is same. यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, सारा है ना, सारा एक लड़की का नाम है। उसके बाद हमने डस नोट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। आपने ये याद रखनी है, अरेंजमेंट ये नहीं करना ही नोट डज इस तरह से, जैसे ही डज नोट प्ले क्रिकेट, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट,
इट आल्सो हैव द सेम सीक्वेंस। इट के लिए जो है वो भी इसी तरह आएगा कि डस नॉट ही लगाएंगे अगर हम हमारा सब्जेक्ट इट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा सारा है, सारा डस नॉट प्ले टेनिस। ओके, इट डज नॉट लुक ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे मैंने लुक लगाया है, ठीक है ना। अब इट तो क्रिकेट नहीं ना खेल सकता। उसके बाद आप देखें अगर हमारा सब्जेक्ट है यू दे वी आई प्लूरल सब्जेक्ट, नेम ऑफ द मोर देन वन पर्सन, यू दे वी आई and name of the more than one person, then we will use do not as our helping verb and there is first form of the verb. अब I we you they और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने डू नॉट लगाना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे। अरेंजमेंट हमारी वही है, ऊपर ही शीट। अब आप देखें कि जिनके साथ आपने पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगाया था, एस और जिनके साथ आपने एस और ई एस एड किया था नेगेटिव में, उन सबके साथ डस बना है। अब आप देखें डस के ई एस ने प्लेस ले ली है ना एस और ई एस की। डस का जो ई एस है इट रिप्लेसेस द प्लेस ऑफ एस और ई एस। ये आपके लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो डू नोट में तो वैसे ही एस और ई एस जो है इनमें ऐड नहीं होता। यू वी दे आई प्लूरल सब्जेक्ट में तो वैसे भी अफर्मेटिव में भी एस और ई एस ऐड नहीं होता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो क्या होगा कि यहाँ पे हमने डू नोट लगाया। अब यहाँ पे एस और ई एस नहीं, पहले ही नहीं था, और यहाँ पे एस और ई एस ऊपर हमने अफर्मेटिव में लगाया था। अब वहाँ का जो एस और ई एस है तो डस लगेगा, क्योंकि हमारा ये डस जो है ये उसी की प्लेस में आ जाता है। डस नोट लगाएंगे नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हम डू नोट लगाएंगे इनके साथ। इनके साथ जो है ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यू दे वी आई प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो हम डू नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यस यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? नो, ओके। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल से पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें हमारा स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टूडेंट्स अनम्यूट योरसेल्फ, don't make the noises, don't disturb me, okay। Now see, so same sequence we use in the above arrows, it is the same in the sentence structure. At the start there is do or does. Ma'am, Yes, ma'am, here, ma'am, can we also in the plural subject, ma'am, they and we are also plural subject. yes, Ma'am, they and we, they are also plural subject. they plural subject है, they is our plural subject, okay। मैम जिस तरह यहाँ पे आपने मैम लिखा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट अली एंड सारा, मैम इस तरह, तो मैम प्लूरल सब्जेक्ट तो मैम दे और वी भी होगा ना इंक्लूड? हाँ जी वही होगा, लेकिन आपका मैंने यहाँ सारा और अली नहीं लिखा। हाँ जी, ये देखें यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा अगर एक लड़का या लड़की का नाम होगा तो वो सिंगुलर है, और अगर प्लूरल होगा जब एक से ज्यादा नाम होंगे। मैम दे भी तो प्लूरल सब्जेक्ट ही होगा काउंट? हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, दे भी तो प्लूरल है ना, ये देखें दे। मैम मैम आप कुछ बच्चों को एंटर कर दें मीटिंग के अंदर, बोल मैम वो बहुत कह रहे हैं कि हमें मीटिंग में एंटर कर दें। क्या करना है मैम? कुछ बच्चों को आपने मीटिंग में एंटर नहीं किया, मैम उन्हें मीटिंग में एंटर कर दें। मैं सबको साथ साथ एंटर कर रही हूँ बेटा, बच्चे आई बहुत लेट हैं, हमारी क्लास अभी खत्म होने वाली, मुझे लगी है ना ये टेंस कंप्लीट होगा, आप लोग बहुत लेट आए हैं। ट्राई करें कल से आप ना जल्दी टाइम पे आए। अब आगे जरा देखें इसको। अच्छा, आपकी जो बात है, क्वेश्चन है आपका नाम क्या है? आपका क्वेश्चन है बेटा कि दे भी प्लूरल है। हाँ जी, दे बिल्कुल प्लूरल है, लेकिन हमारे बहुत सारे उर्दू के फिक्रे होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वो की जगह दो नाम भी लिखे होते हैं। अली और सारा ने ये काम किया, अहमद और आसिम ने ये काम किया, तो कभी कभी दो नाम इकट्ठे भी आ जाते हैं। तो दे जो है कभी कभी दे हमें यूज करना पड़ता है अगर हमारी होगा कि वो क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलते वो उन्होंने बताया कौन है ये नहीं हमें पता, तो वो है तो हम उसको, वो हमारा थर्ड पर्सन ही है, हम उसमें प्ले लगाएंगे
और वर्ब की जो है ना फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एस और यस नहीं लगेगा। अगर अली और सारा क्रिकेट खेलते हैं वो भी प्लूरल आ जाता, अली एंड सारा प्ले क्रिकेट। अब आपको समझ आई है? यस मैम। ओके, तो आपने ये बात याद रखनी है। फिर मैं एक बार यही बता देती हूँ, क्योंकि हमारा जो नेगेटिव था मुझे लगता नहीं आज हो पाएंगे, हमारा 2 मिनट्स रह गए हैं। कल आप टाइम पे क्लास में आइएगा। ये देखें जरा, दोबारा से मैं ये बात आपको बताती हूँ। कंफ्यूजन है कि इफ आवर सब्जेक्ट इज ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये हमारे बाय चांस के हमारा इस रूल में सारे ही सिंगुलर आ जाते हैं। ही भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, इट भी है, और सारा भी सिंगुलर है, यानी किसी एक पर्सन का नेम। अगर ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो हमने डज नॉट लगाना है फर्स्ट फॉर्म। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो यू होगा, दे होगा, वही होगा, आई होगा और प्लूरल नाउन होगा। अब ठीक है, यहाँ पे मेरा आई, वही, यू ये 3 सिंगुलर है, प्लूरल यहाँ पे दे भी है, और अली और सारा ये भी प्लूरल है। अगर हमारे इस तरह के सब्जेक्ट होगा तो हमने फिर डू नॉट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, अब इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं। आप स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। ये जो हमारा डू नॉट या डज नॉट है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऊपर वाले होंगे तो डज लगेगा, डज नॉट। अगर इनमें से कोई होगा तो डू नॉट लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव में एस और यस नहीं लगेगा। अब ये एग्जांपल्स हैं, वो आहिस्ता नहीं चलता है। अब देखिए, वो उन्हीं को जो मैंने ऊपर अभी किए थे ना, उन्हीं को नेगेटिव में कन्वर्ट किया है। वो ऊपर हमने कहा था ही वॉक्स स्लोली, लेकिन यहाँ पे डज लगेगा, वो आहिस्ता नहीं चलता है। ही डज नॉट वॉक स्लोली, डज के ही के साथ ऊपर हमने अभी किया है ना, कि ही के साथ जो है, ही के साथ आप देखें कि डज आता है, डज नॉट। तो हम करेंगे ही डज नॉट वॉक स्लोली। बच्चे आंख मिचोली नहीं खेलते हैं। बच्चे के लिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, नहीं खेलते। सबसे पहले हमने डू नॉट या डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आप लगाना है। नेगेटिव में हमारी अरेंजमेंट देखें, आप स्ट्रक्चर को देखें, सब्जेक्ट है, फिर डू नॉट या डज नॉट। तो इसी तरह चिल्ड्रन हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लगा दी, उसके बाद हाइड एंड सीक इज आवर ऑब्जेक्ट। हमारी अरेंजमेंट वही है जो मैंने फॉर्मूले में बताई है, इसको आपने आगे पीछे नहीं करना। आगे देखें, मूसलाधार बारिश नहीं होती है। अब मूसलाधार मीन हैवीली रेन, हैवी रेन, और रेन कैट्स एंड डॉग भी कह सकते हैं। अब मूसलाधार बारिश नहीं होती है, हमने इसका सब्जेक्ट, अब रेन को हम स्टार्ट में नहीं कर सकते, रेन डज नॉट हैवीली, इस तरह नहीं। रेन जो है, हम रेनिंग भी तो बोलते हैं ना, एज अ वर्ब भी रेन को यूज करेंगे। अब ये इट आएगा इसके लिए, इट भी उसी रूल्स में आ जाता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो